within 2 minutes we'll be starting the session, and I can see a new Dr. Nitin Shishodia in the group, and and today my webcam is working, so a lot of exercises which we'll be discussing, I can do a live demo also, क्योंकि जो सुनते हैं अगर वो कर ले साथ के साथ तो the results are great. Welcome. सारे फोन के नाम से हैं maximum people. Good evening, sir. And I want to know who is the new Dr. Nitin Shishodia in the group. He has a logo of M. और आज as we are on the level 3 of the occlusion, which is the strongest level in terms of our understanding and clinical practice. So today we'll also be discussing how to grow our clinical practice. ठीक है? And soft skill enhancement. This is a add-on gift that will be at the end of session. Am I audible, Dr. Vaishali? Yes, sir, you are. ठीक है. तो ठीक है, let's start the session, okay? And as I told, at the end of the session, we'll be having a small 5-minute talk on how to expand our clinical practice, along with a few tips I'll discuss, okay? And I'll be just sharing my screen. I want everybody to unmute yourself except Dr. Vaishali, and so that I can also connect with people in terms when I'm not audible. So guys, we are on the level 3. Okay, you must be seeing the slide of level. You can see the slides, right? Am I audible? I think I'm not audible. So you're audible. Yeah, I'm audible. Fine. So we are on the last stage, that is level 3 of occlusion, which will help us a lot in a clinical practice as we progress through this session. And before starting, for the new participants, I'll just introduce myself. Dr. Nitin Shishodia, partner of Dynamic Personality, a sports person turned dentist, now a virtual clinical dentistry coach, fitness freak, and founder of Reliable Dental Care. I'd like to say hi to everybody, and then okay. Can you guys see me now? Yeah. तो अभी जैसे मैंने सबको अनम्यूट करा हुआ है, बट आई वांट कि पीपल शुड रिस्पॉन्ड ऑन द चैट बॉक्स. कि छोटी-छोटी चीजें which I'll ask. If you want to say yes, say why. You want to say no, say no. At least put short forms so that I can see everybody is attentive and everybody is taking advantage of the session. Okay. So now I'll just stop my video and start the slides. Okay. Welcome you all, and I'll start the share. So as many of the participants missed the yesterday's session, so I'll be having a brief revision of the yesterday's session. तो हमने जब सारे cases discuss कर लिए, we started with all the cases. ठीक है. So we started with all the cases, then we started with few terms in terms of occlusion which we will be applying in a clinical dentistry to understand in a better way. Okay, तो functional occlusion के बारे में बात करा हमने, static occlusion बोला, dynamic occlusion बोला. Static occlusion हमें समझ आया कि जो MIP होता है उससे related है सारा, और जो डायनेमिक occlusion है उसमें बेसिकली वी आर मोर रिलेटेड टू द मूवमेंट्स ऑफ द मैंडिबल. जो हमारा मैंडिबल प्रोट्रूड करेगा, हमारा मैंडिबल लैटरल स्कर्ट करेगा,
ठीक है. तो two new things I discussed yesterday that regarding static occlusion and dynamic occlusion, strong teeth concept and स्मार्ट टीथ कॉन्सेप्ट. ठीक है, स्ट्रॉन्ग टीथ कॉन्सेप्ट सबको समझ आया क्योंकि डे टू डे लाइफ में भी क्लेंच आवर टीथ अ लॉट when we are in stress or we are doing some root canal and we are not able to find our canals. A lot of examples. So strong teeth concept क्या है? Basically when we clench our teeth, तो उसमें क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम फोर्स लगा पाते हैं क्योंकि जब हम क्लेंच करते हैं, हमने देखा होगा हमारी जो एलिवेटर मसल्स हैं, टेम्पोरालिस और मेसेटर, if we palpate them, we are able to see the tautness of the muscle, hardness of the muscle. So posterior teeth come into the role more. Okay, I'll on my video so that you understand what I'm trying to say. The tautness of muscle जो है ना, आपके maximum intercuspation में पता चलता है, और anterior teeth में there is less of activity of the muscles. ठीक है, तो we'll move on to the other slide. ठीक है, तो हमें ने ये भी जाना सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बारे में जो हमारे एक स्टैटिक ऑक्लूजन या फंक्शनल ऑक्लूजन के कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, और ये भी हमने जाना कि जब हम मैक्सिमम इंटरकस्पेशन में होते हैं तो व्हाई इट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्लूजन, बिकॉज आर ऑल मैक्सिलरी मैंडिबल टीथ आर इन गुड कॉन्टैक्ट. Stronger contact on the posterior teeth, milder contact on the anterior teeth. Great. Similarly, the mandible contact points. And just to revise once again, contact points in the maxilla will be the palatal cusp, central fossa in the mesial marginal ridge, in the mandible it will be buccal cusp, central fossa in the distal marginal ridge. Great. तो अब हमारा जो इंटरकस्पेशन हो रहा है MIP में, तो एक्चुअली होना कैसे चाहिए? होना ऐसे चाहिए कि जो फंक्शनल कस्प है are directed to the central fossa of the tooth, which is causing the force to go in the axial direction. Axial direction बोले तो vertically along the long axis of the root, जिसके लिए हमारे दांत बने हैं. कि कोई भी चीज स्ट्रांग है तो वो एक डायरेक्शन में स्ट्रांग है. ठीक है, जस्ट रिमेंबर. तो व्हेन वी क्लेंच, इफ द फोर्सेस आर वर्टिकली, आवर टीथ आर गुड इनफ टू बियर. तो ऑन एन एवरेज जब हम क्लेंचिंग करते हैं या फिर जब हम दांत से दांत कांटेक्ट करते हैं, तो वी जस्ट मेक अ 15 to 20 minutes contact and we have a cycle of 1800 chewing cycles or 500 swallowing cycles. तो डायनेमिक ऑक्लूजन पे आया है. देन वी टोल्ड अबाउट द एंटीरियर गाइडेंस. एंटीरियर गाइडेंस पे वी केम टू नो अबाउट द मैक्सिलरी इंसाइजर का पैलेटल सरफेस, मैंडिबल इंसाइजर का लेबियल सरफेस, और मैक्सिलरी कैनाइन का मीडियन रिज. क्योंकि नाउ द टीथ विल बी स्लाइडिंग बिफोर दे वर टचिंग, तो कॉन्टैक्ट लाइन से हमारा ऑक्लूजन आ जाएगा, कॉन्टैक्ट एरिया से आ जाएगा, हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट से बेसिकली आ जाएगा कॉन्टैक्ट लाइंस. तो दिस इज द वे व्हेन वी डू एक्सकर्सिव मूवमेंट, how the ideal line should be there. ठीक है, so we are more discussing about the ideal things today. मतलब in the yesterday we discussed, today we'll be discussing more of the non-ideal things, that is the effects which will be happening on the occlusion. तो ये भी पता चला, कैनाइन एंड गाइडेंस समझ आया है कि जब हम लैटरल एक्सकर्शन करते हैं, दैट इज जॉज को हम लोग लेफ्ट राइट करते हैं, तो हमारे कैनाइन्स ही टच होने चाहिए. अगर पीछे वाले दांत टच होंगे तो वहां नॉन एक्सियल फोर्सेस लगेंगी, जो हमारी एलिवेटर मसल से वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, which will cause harm. In Jera incisal guidance, we can see how the teeth slide and come to the tip, and this is the motion of the mandible when we comes to the protrusive incisal H2H position. Canine guidance, biting and chewing bolus हमने डिस्कस करा था. कभी भी हम कोई चीज च्यू करते हैं तो सबसे पहले we incise the food bolus, solid food bolus, and then goes to the posterior teeth, then we start crushing it, और ये repeated होता रहता है जब तक हम swallow नहीं करते, और ये continuous swallowing और chewing crushing का process चलता रहता है. And then canine guided occlusion. Why canine is important? Why only the God has given canine the full strength? How it can work, and why only canine? Is that canine has the longest root, it has the thickest, most cortical bone on the buccal and palatal aspect both, it has the longest root and the maximum proprioception, guys. It has maximum proprioception. So these are the reasons why canine is suited and ideal for controlling all the teeth in terms of lateral excursion. Yeah. तो हमने मसल एक्टिविटी पढ़ा था. कैनाइन गाइडेंस में मसल एक्टिविटी बेस्ट होती है क्योंकि देख रहे हैं जो भी ब्लू वाली मसल्स है वो एलिवेटर मसल्स हैं, दे आर ऑल रिलैक्स्ड. ओनली द इंफीरियर लैटरल कैटेगॉइड इज रेड, दैट इज इट इज लिटिल एक्टिव.
म्यूचुअली प्रोडक्टिव ऑक्लूजन में हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन द पोस्टेड टीथ, जो हमारे स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, उनका क्रशिंग का काम है, और जो हमारे एंटी टीथ होते हैं उनका इंसाइजिंग का काम है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो दोनों म्यूचुअली को एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बट क्लिनिकली ज्यादा दिखता नहीं है। वी फाइंड मोर ऑफ ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन का मतलब कि अब हमारा कनाइन गाइडेंस नहीं हो रहा, कनाइन वीक है या मिसिंग है या पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज है, स्ट्रक्चरली वीक है, तो पोस्टीरियर टीथ विल कम इन कांटेक्ट। अब पोस्टीरियर टीथ कांटेक्ट आएंगे तो एक्सियल फोर्सेस नॉन एक्सियल हो जाएंगी, एलिवेटर मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, और इट विल बी डिटरमिनेंटल स्पेशली टू द मोलर्स, बिकॉज it will be more of a disum type of occlusion rather than tuck type of occlusion. Basically, you can see the axial forces and what happens to the muscle activity. Now you can see all the muscles are red: the superior, inferior lateral pterygoid, masseter and the temporalis. ठीक है guys, अब जो मैं बताने वाला हूँ, it is going to start now regarding the working side contacts. कल हमने just एक छोटा सा डिस्कशन लिया था working side contacts के बारे में. I'll just elaborate it. तो उसमें क्या है, जो वर्किंग साइड कॉन्टैक्ट्स हैं, हमने देखा ग्रुप फंक्शन पे, दिस इज द वर्किंग साइड कॉन्टैक्ट्स, दैट इज जब हम अपने मैंडिबल को दांत से दांत ग्राइंड करते हुए राइट या लेफ्ट पे ले जाते हैं, ऑन माय वीडियो फॉर दिस। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे जो दूसरी साइड के टीथ हैं वो ऑक्लूजन में नहीं रहते। दिस शुड बी द आइडियल सिनेरियो इवन इन ग्रुप फंक्शन, और कैनाइन गाइडेंस में तो मस्ट है। ठीक है, और जैसे ही हम अब ये जो खाली जगह है बेसिकली नॉन वर्किंग साइड है, और जहां दांत कॉन्टैक्ट हो रहे हैं वो वर्किंग साइड है। तो वी कैन जस्ट डू दिस एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड दिस। वन सेकंड ऑन माय वीडियो। तो हम एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करेंगे, वील जस्ट I think you can see video problem again. चलो, anyways, तो basically क्या करना है, you just have to put your index fingers in front of the ear. ठीक है, और joint को feel करना है। कैसे feel करना है, you just have to open your mouth and you just have to close your mouth. Okay, you can see me on my other link, डॉक्टर नितिन सिसोदिया, I guess. तो हमको क्या करने का है, हमको क्या करना है, हमको यहाँ फिंगर रखना है, you can see me, and we'll just try to open our mouth, थोड़ा ही ज्यादा वाइड नहीं, and we'll close our mouth. 3 times we'll do this to feel how the condyle is coming out of the fossa and how the condyle is going back to the fossa. ठीक है, close, close. Great. This is a normal axial, I'll say hinge type of movement, and as we open wide, you will see initially the condyle was just rotating, and then as you open wide, the condyle has translated. You can see the depression of your finger into the fossa as the condyle leaves the fossa, that is a little away from the fossa. ठीक है, अब सेम चीज नॉन वर्किंग साइड को कैसे समझने का है, नॉन वर्किंग साइड को ऐसे समझने का है, we'll clench your teeth back, great, and slowly we'll grind towards left. हम ये देख रहे हैं जिसकी तरफ हम ग्राइंड कर रहे हैं उस तरफ हमारा जॉइंट, we can feel it, and जहां जिस तरफ हमारा क्या कहते हैं जॉ नहीं जा रहा, that is नॉन वर्किंग साइड, वहां we can feel a depression with our fingers. तो we can see कि हमारा जो कॉन्डाइल है नॉन वर्किंग साइड पे अपनी फोसा को छोड़ के थोड़ा सा ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो हमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट पता चले, ओपन एंड क्लोज, वी गॉट टू नो द लैटरल साइड की जिस तरफ जॉइंट को मूव करेंगे, जिस तरफ जॉ को मूव करेंगे, सॉरी, तो उस तरफ क्या होगा, उस तरफ का कॉन्डाइल तो ठीक रहेगा, इट विल बी इन द फोसा, बट दूसरी साइड का कॉन्डाइल इट विल बी अवे फ्रॉम द फोसा। ठीक है, तो आई गेस थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा हम सबको। तो और एक और चीज आई लाइक एवरीबडी टू फील कि सेम चीज अभी हमने जैसे लेफ्ट राइट करा ना, वी जस्ट मेक योर टीथ edge to edge, just clench and grind them edge to edge. You can see both the sides
your condyle will be leaving the fossa, and you can feel a depression in the place where the condyle was there. ठीक है? Can you guys feel these things which I am telling? Text box में ना yes भी कर दोगे ना, I'll feel कि everybody is active and everybody is enjoying the session, because today is the last session for occlusion and I want everybody to understand the topic. आप अपने आप कभी नहीं इसको पढ़ पाएंगे. You will be like very much bored और काफी चीजें unclear रहेंगी, doubts clear नहीं होंगे. ठीक है? Great. I saw the response of Dr. Neeraj earlier. Dr. Deepthi, great. So I think my full energy which I am spending to make you guys understand, you are correlating with this. Great. तो हमें अब ये पता चल गया कैसे कैसे कॉन्डाइल मूव करता है जब हम हिंज एक्सिस में मूव करते हैं, कैसे कैसे कॉन्डाइल मूव करता है जब हम वाइड माउथ ओपनिंग करते हैं, दैट इज ट्रांसलेटरी मूवमेंट. और हमें ये भी पता चल गया कि लैटरल स्कशन और प्रोट्रूजन में कैसे कॉन्डाइल में चेंजेस आते हैं. तो अगर हमें किसी भी चीज का नॉर्मल वर्किंग पता चल जाता है तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑल्सो. क्योंकि जब हमें नॉर्मल ही नहीं पता तो हम प्रॉब्लम्स को कैसे डायग्नोज करेंगे, या फिर डायग्नोज नहीं कर पाए तो ट्रीट कैसे करेंगे. ठीक है गाइस? ओके, तो वेलकम टू द लेवल 3 एंड वी हैव ओनली 10 to 15 मिनट्स. ओके, अब हम लेवल 3 पे आने लायक हैं. हमने कुछ एक्सरसाइज कर ली. वी आर चार्ज्ड अप फॉर द लेवल 3. तो लेवल 3 में है क्या? व्हाई आई एम प्रोमोटिंग लेवल 3, व्हाई आई एम टेलिंग इट्स वेरी स्ट्रांग? बिकॉज अब तक जो हमने पढ़ा ना, सारी चीजें ऑलमोस्ट नॉर्मल पढ़ी या क्लोज टू नॉर्मल पढ़ी. और नॉर्मल के साथ साथ हमने मसल्स के फंक्शन के बारे में पढ़ा, जॉइंट के फंक्शन के बारे में पढ़ा. और फिर प्रॉब्लम कब आती है भाई? अब हमने सारी चीज तो पढ़ ली, पर प्रॉब्लम कब आती है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, और हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं. ट्रीटमेंट तो तभी हो पाएगा ना. तो इंटरफेरेंसेस में क्या है? बेसिकली इंटरफेरेंसेस नथिंग, इट्स जस्ट एन ऑब्स्टिकल. It's just an obstacle when we are in function. That is, our teeth are in function, our jaws are in function. In any tooth contact, disruptive mandible movement results in alteration of occlusion function. तो अभी तक जो हम चेक कर रहे थे on our TMJs and on our occlusion, we were seeing everything was perfect. The teeth were coming nicely, the teeth were leaving the jaws nicely, the condyle was coordinatedly nicely, muscles were perfect. मगर अगर हमारे दांतों के बीच में एक छोटा सा कंकड़ भी आ जाए, गिव दिस एग्जांपल बिफोर आल्सो, सडनली क्या होता है? हमारे सारे दांत नहीं मीट करते. तो दिस इज कॉल्ड एन इंटरफेरेंस. पर वो कंकड़ वी कैन जस्ट रिमूव विद आवर हैंड एंड वी कैन जस्ट कम बैक टू द नॉर्मल ओक्लूजन. बट पेशेंट के माउथ में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो ही कांट ग्राइंड एंड करेक्ट इट, वी ओनली हैव टू करेक्ट इट. तो हमें समझना है कि कभी कभी पेशेंट नहीं आइडेंटिफाई कर पाता, वो कहता है हाँ डॉक्टर साहब सेटल हो जाएगा. तो सेटल क्या होता है वो भी मैं आज समझाऊंगा. सेटल उसकी बॉडी करती है. ठीक है? तो बेसिकली ये सारा फंडा क्या है, मतलब बॉडी कैसे पता लगाती है कि हाँ ये चीज हाई है, हाउ सेंसिटिव, हाउ स्ट्रॉन्ग आवर प्रोप्राइसेप्शन इज देयर एक्चुअली, वी शुड कम टू नो. ठीक है? तो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फीडबैक मैकेनिज्म नाउ. ओके, तो फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली है क्या? ये कहता है कि कोई भी चेंजेस जैसे होते हैं ना, हमारा प्रोप्राइसेप्टिव फीडबैक बहुत स्ट्रांग है. तो दांतों में जो प्रोप्राइसेप्टिव फीडबैक देता है हमारा पेडोडोंटल लिगामेंट, व्हिच इज वेरी सेंसिटिव टू एनी चेंजेस. ठीक है? तो टीथ जो है हमारे एक्सट्रीमली सेंसिटिव है टू एनी इंटरफेरेंस, और वो रिएक्टिव भी है. जैसे वो रिएक्टिव होते हैं किसी भी इंटरफेरेंस के लिए, मेनली जैसे कोई नॉक्सियस स्टिमुला है, हाई पॉइंट कुछ भी हो, तो सडनली फीडबैक मैकेनिज्म कनेक्ट होता है मसल से ब्रेन में, एंड वी कम टू नो कि कोई प्रॉब्लम है भाई, वी नीड टू करेक्ट इट. जैसे पेशेंट बोलता है नहीं सर ऊंचा है, वी जस्ट कीप ऑन करेक्टिंग फॉर 15 मिनट्स 20 मिनट्स, ऊंचा है. वो ऊंचा है तभी वो कह रहा है, बिकॉज इट्स द पेशेंट्स फीडबैक मैकेनिज्म व्हिच इज टेलिंग कुछ गड़बड़ है. हमारे आर्टिकुलेटिंग पेपर घिस जाते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू मेंटेन. अल्टीमेटली व्हाट वी डू, वी कहते हैं कि सेटल हो जाएगा. ठीक है? आज सेटल हो जाएगा वाला फंडा I'll remove from your mind. You have to settle. That is, you have to settle in terms that you have to correct the high point. ठीक है? तो MIP और excursion,
तो ये इंटरफेरेंसेस जाहिर सी बात है दो तरीके की हो सकती है, एक MIP पे दैट इज मैक्सिमम इंटरकस्पेशन, I'll explain you diagrammatically, और दूसरा एक्सकर्शन पे, ठीक है, क्योंकि दांत जैसे MIP दैट इज मैक्सिमम इंटरकस्पेशन पे मीट होते हैं, वैसे वो एक्सकर्शन पे नहीं होते बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस ऑन द टीथ, और सारे टीथ में कैनाइन गाइडेंस एंड साइलर गाइडेंस तो होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है मोलर्स कैन आल्सो टच इन एक्सकर्सिव मूवमेंट्स। तो ये कैसे डिलीटरियस है हमारे पेरिडोन्शियम के लिए और स्टोमेटोगेनेटिक सिस्टम के लिए, ये अब पढ़ेंगे हम। नाउ वी हैव रीच्ड द क्लाइमैक्स ऑफ occlusion, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंसेस इन MIP। तो बेसिकली we'll be discussing in that is the concept of deflective contact. तो again I'll open my phone's camera and we'll do a exercise together, ठीक है guys। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करने का है, इस एक्सरसाइजेस में हमको you can see, I think मैंने खोल दिया कैमरा, anyways you can see me, इसमें हमें क्या करना है, अपने हेड को पीछे ले जाना है, ठीक है, हेड को ज्यादा पीछे नहीं, इतना पीछे ले जाना है कि we are comfortable enough and we have to open our mouth. Guys, please connect with me, okay? Then only you'll understand this concept. Otherwise, it is very difficult. Just raise your head back and open your mouth and slowly, very slowly close as if you have to touch your back teeth. ठीक है? Sir, we can't see. You can't see? Okay, I was No. so back. Wait, you can see me now? No. नहीं, मेरे फोन में चल रहा है एक्चुअली, यू हैव टू चेक दैट अदर नितिन सिसोदिया। वेट, आई विल जस्ट ट्राई अगेन कि वेदर, वन सेकंड। अच्छा, यू वांट मी टू डू द एक्सरसाइज फर्स्ट? नाउ यू कैन सी माय आईज। तो बोल Yes, sir, we'll see you. तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सर पीछे करा, देखो धीरे धीरे, ठीक है, यू कैन सी मी गाइस। मैंने सर पीछे करा, Yes. और मैंने धीरे धीरे मुंह भी खोला, या फिर मुंह खोल के सर पीछे करा, and slowly and steadily I'm closing my mouth and I'm trying to touch my back teeth. Remember, open your mouth and close slowly and try to touch your back teeth. And now clench. Okay, you can try this 2-3 times. What you will be feeling, I'll tell you. You can you can do this 2-3 times. What you will be feeling, I'll tell you कि ठीक है। तो बेसिकली इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्लेक्टिव कॉन्टैक्ट क्या है, जैसे ही हमने सर पीछे करा और मुंह खोला और धीरे धीरे मुंह बंद करा, हमारे दांत कहीं टच हुए, और लोअर टीथ टच द अपर टीथ एट सम पॉइंट, and then when we clenched, there was a little slide and the teeth came in maximum intercuspation. I'll unmute everyone and I want to see कि हाँ या ना, क्योंकि ये अगर फील कर लिया ना, you will understand the concept of interference. I'll unmute all. ठीक है, सबने करा, सर पीछे ले गए, धीरे धीरे मुंह बंद करा, Yes, sir. टच हुए, then when we clench, जब दांत टच होते हैं तो वो मैक्सिमम इंटरकस्पेशन में नहीं है, अंडरस्टैंड दिस, और जैसे हम क्लेंच करते हैं वो एकदम से स्लिप होके मैक्सिमम इंटरकस्पेशन पे आता है। एवरीबॉडी फील दिस? Yes. Yes, great, Yes, sir. great. Who didn't feel can text me or message me in this, because I'll tell him few things about his occlusion. Later we'll discuss. ठीक है, I'll unmute all guys. तो अब हमने ये जाना कि मैक्सिमम इंटरकस्पेशन जब हम नॉर्मली अनकॉन्शियस होते हैं, अगर हमने कॉन्शियसली करा तो दांत तो ऑटोमेटिकली इंटरकस्पेशन पे आ जाते हैं, वी डोंट हैव टू थिंक। ठीक है गाइस, यू आर गेटिंग मी? वी डोंट हैव टू थिंक, वी जस्ट ओपन एंड वी क्लोज, टीथ कम इन मैक्सिमम इंटरकस्पेशन। अब जब हमने हेड पीछे करा तो ये एक बेसिकली एक एक्सरसाइज है या फिर एक तरीका है जिसमें वी रिकॉर्ड सीआर। गाइस यू नो सीआर प्रोस्ट में एक बहुत बड़ी डेफिनेशन हुआ करती थी, वी यूज्ड टू रैक्टिफाई इट, एंड हमें बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अपने स्टाफ को सुनानी होती थी, सेंट्रिक रिलेशन।
या Yes. ठीक है, कॉलेज के दिन प्रोसेस डिपार्टमेंट फाइनल ईयर पसीने के साथ डेफिनेशन सुनाते हुए, Yes. तो वही चीज, तो बेसिकली सेंट्रिक ऑक्लूजन और सेंट्रिक रिलेशन के बारे में हम ज्यादा बात करते थे, ठीक है। सेंट्रिक ऑक्लूजन ही बेसिकली जो मैक्सिमम इंटरकस्पेशन है, इट्स अदर टर्म फॉर सेंट्रिक ऑक्लूजन। पुराना टर्म था सेंट्रिक ऑक्लूजन, अब हम सेंट्रिक नहीं बोलते, सिर्फ मैक्सिमम इंटरकस्पेशन बोलते हैं। बट हाँ, सेंट्रिक रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि हर लगभग साल या 2 साल में उसकी डेफिनेशन बदलती रहती थी, ठीक है। तो बेसिकली सेंट्रिक relation is the relation of condyle with the glenoid fossa, ठीक है, and which is considered to be the most harmonious position for the joint. You are getting it, guys? I don't want to you guys to rectify the definition, but the समझ जो आना चाहिए ना, वो समझ आना चाहिए, जो बेसिकली उसका फंडा क्या है, कि it is the relation of condyle with the glenoid fossa in which it is in a very harmonious position. मतलब बहुत बिंदास पोजीशन पे है, वो बहुत स्टेबल पोजीशन पे है, और इट विल लास्ट लॉन्ग, मतलब जॉइंट की इश्यूज नहीं आने वाले बेसिकली, ठीक है। तो ये है बेसिकली सेंट्रिक रिलेशन। और अभी हमने जब देखा, जब हमारे दांत मिले हेड पीछे करके, वो कॉन्टैक्ट हुआ था सेंट्रिक रिलेशन में। तो जब हमारा कॉन्डाइल सेंट्रिक रिलेशन में था, बेसिकली जब हमने हेड पीछे करा और जब हमने बाइट करने की कोशिश करी, हमारे दांत जब फर्स्ट टच हुए वो सेंट्रिक रिलेशन में थे हमारा कॉन्डाइल। उसके बाद जैसे हमने क्लेंच करा, मतलब वो दांत थोड़े से शिफ्ट हुए, क्या हुआ आई टेल यू, एंड देन वी वर इन मैक्सिमम इंटरकस्पेशन। तो मतलब सीआर में टच हुए और एकदम से फिर सीओ में आ गए, सेंट्रिक ऑक्लूजन, मतलब मैक्सिमम इंटरकस्पेशन में। तो सीआर एंड एमआईपी इज नॉट कोइंसाइडिंग in 99.99% of population. CR and CO doesn't coincide. Is there anybody who is 0.001 इसका CR और CO coincide कर रहा है? तो it's great. I want to No. check. No ना? तो ये फंडा क्लियर हो गया हमें कि CR बोन है और MIP अलग चीज है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के हमारे ऑक्लूजन में बाय डिफॉल्ट एक छोटा सा डिफ्लेक्टिव कॉन्टैक्ट है। आई एम इंसिस्टिंग, छोटा सा डिफ्लेक्टिंग कॉन्टैक्ट, ओके, जिसको हमारी बॉडी अडैप्ट करती है, वी डोंट हैव एनी सिम्टम्स, ठीक है। अब मगर ये डिफ्लेक्टिव कॉन्टैक्ट बड़ा हो सकता है। तो बेसिकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो एटलीस्ट आई विल कवर द दिस एंड हाँ, अब बहुत सिंपल है, जब हमें ज्वाइन करना होगा ना, तो जो हमें ज्वाइन करना होगा ना, 1 सेकेंड, तो हम लोग सेम लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं और सेम आईडी पासवर्ड है, तो नई आईडी बनाने की जरूरत नहीं है मेरे को। यू गाइस कैन जस्ट क्लिक ऑन द सेम लिंक एंड विल कनेक्ट, ठीक है। तो अब हमें मजा आ रहा है, हमने सीआर अच्छे से समझ लिया, जो हमने थोड़ा थोड़ा जाना था, मे भी अच्छे से जाना भी होगा, और अब हमें डिफ्लेक्टिव कॉन्टैक्ट भी समझ आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मेरा कंप्यूटर सो गया, ठीक है। हाँ, तो हिट एंड स्लाइड ऑक्लूजन। तो बेसिकली हुआ क्या, जब हमने एक्सरसाइज करी, हमारे मैंडिबुलर टीथ ज्यादातर पोस्टीरियर हिट करे कहीं, और देयर वाज अ वेरी लिटिल, मतलब मिलीमीटर्स में होगा, चाहे 0.5 हो चाहे 1, एंड वी स्लाइडेड फॉरवर्ड एंड वी केम इन मैक्सिमम इंटरकस्पेशन। दिस इज कॉल्ड हिट एंड स्लाइड। इज इट क्लियर गाइस? आर यू विद मी? सब म्यूटेड है, ठीक है। No, sir. Please repeat. Sir, repeat. ओके डॉक्टर रेशमा, आई कैन रिकॉग्नाइज योर वॉइस। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैंने एक्सरसाइज करवाई, क्या एक्सरसाइज करवाई कि हेड पीछे ले जाके दांतों, देयर वाज अ वेरी लाइट कांटेक्ट इनिशियली, एंड देन व्हेन वी क्लेंच्ड आवर टीथ केम इन गुड कांटेक्ट। लाइट कांटेक्ट मतलब सारे दांत अच्छे से इंटरकस्पेशन में नहीं है, गुड कांटेक्ट मतलब अच्छे से इंटरकस्पेशन में है। तो पहला जो कांटेक्ट है वो था हिट, और जैसे ही हमने क्लेंच करा वो हो गया स्लाइड। तो इसको कहते हैं हिट एंड स्लाइड ऑक्लूजन, और ये डिस्क्रिपेंसी हम लोगों में बाय डिफॉल्ट है। तो 0.5 मिलीमीटर की जो डिस्क्रिपेंसी, 0.5 किसमें 1 किसमें 2 3 जितनी भी होगी, आइडियली हमारी बॉडी, दैट इज हमारी मदर मसल, दैट इज लैटरल टेरिगॉइड, कैन अडैप्ट इन 2 मिलीमीटर्स। आपका अगर 2 मिलीमीटर तक ऑन एन एवरेज हिट एंड स्लाइड है, अब कोई महापुरुष या मतलब वो हो जिसकी बॉडी बहुत अच्छे से अडैप्टेड है, उसकी बात अलग है, मगर 2 मिलीमीटर तक ऑन एन एवरेज हमारी मसल अडैप्ट कर जाती है इस हिट एंड स्लाइड को। दिस इज आवर बॉडीज अडैप्टिव मैकेनिज्म, ठीक है। मगर ऑन एन एवरेज 0.5 0.1 ही होती है। जैसे अभी मैंने भी करा, आई थॉट देयर वाज अ लिटिल 0.5 mm ऑफ स्लाइड होनी है और मैक्सिमम 1 mm ऑफ स्लाइड, ठीक है। डिड यू गेट डॉक्टर रेशमा?
Did you Yes, got my sir. point? Yes. Yeah, great. तो अब हम और अच्छे लेवल पे जा रहे हैं. अब हमने सब कुछ इमेजिन करा, ठीक है. अब हम थोड़ा सा एक दांत के रिलेशन में देखते हैं बेसिकली हुआ क्या था. ये हुआ था जैसे ही हमने अपना हेड पीछे करा था, हमारा कोई कस्ट टू कस्ट कांटेक्ट हुआ, और जैसे ही वो कांटेक्ट हुआ इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिव कांटेक्ट. और एकदम से यू कैन सी द एरो, दिस एरो, and then this lower jaw slided towards the central fossa. You can see how the cusp is touching the cusp, ठीक है, and how in this diagram the cusp is sliding to the central fossa. So this is hit, first contact, and this is slide, that is maximum intercuspation. This is maximum intercuspation. Are you getting, guys, what I'm telling? Everybody is with me? Yes. Yes, चलो great. तो अब हमने ये फिर से एक एक्सरसाइज करी और हम सारी चीज समझ पा रहे हैं. अब जाहिर सी बात है ये हम किस लिए समझ रहे हैं. एक तो अपनी ऑक्लूजन को समझने के लिए, वेल एंड गुड, क्योंकि हम लोग भी दांत हैं, हम लोगों में स्लाइड हो सकता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम प्रोफेशनली करते हैं, वी आर, आई टोल्ड, वी आर नॉट ओनली डेंटिस्ट, वी आर न्यूरोमस्कुलर डेंटिस्ट, ठीक है. तो व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी हम कोई फिलिंग या प्रोस्थेसिस देते हैं, जो मैं पहले दिन से इंस्टेट कर रहा हूं, फिलिंग प्रोस्थेसिस, अब आपको समझ आएगा, शुड बी डुप्लीकेटेड इन द शेप ऑफ द नेचुरल टूथ, ठीक है. अब वो नेचुरल टूथ 50 साल के इंसान का फ्लैट कस्प भी हो सकता है, या फिर 20 साल की फीमेल का वेरी साउंड एनाटॉमी वाला भी हो सकता है, ठीक है. तो जो नेचुरल टूथ को डुप्लीकेट करना है, जो पहले था उसको डुप्लीकेट करना है. ये नहीं हम फ्लैट दांत में अच्छी एनाटॉमी देके बोलेंगे यस वी are so good in composites. It is not like that. We have to just copy, replicate how the normal teeth are there into the same I'll shape, ठीक है. तो to confirm basically ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम ये चीज करेंगे, उसकी exactly shape and form copy करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग occlusal scheme है, जो अभी हमने सबने फील करी, we all were connected to the similar type of exercise. We felt this क्या कहते हैं, first deflective contact and we had a slide also, ठीक है. तो हमें ये चीज समझ आ गई. मगर यही चीज अगर हम अपनी कोई फिलिंग कराते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैड अ टूथएक, वी वेंट टू अ एनी फ्रेंड ऑफ आवर्स, और उसने कोई फिलिंग करी और आपको हाई पॉइंट लगा, तो दो चीज है, या फिर आप अच्छे से उसको ग्राइंड कर दोगे और वो ठीक हो जाएगा, या फिर दूसरी चीज हो सकती है वो हाई रह गया एंड यू आर डेली फीलिंग दैट थिंग कि हाँ यार कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है. बेसिकली गड़बड़ क्या है वो आप अब समझोगे, और यही चीज पेशेंट फील करता है. वो डिपेंड करेगा उसका स्ट्रक्चरल या फिर स्टोमेटोग्नेटिक सिस्टम की टॉलरेबिलिटी क्या है, मगर उसको करेक्ट करने का है. तो हमें बेसिकली हमारा एज अ डेंटल सर्जन आवर मेन एम इज टू डुप्लीकेट द प्री एग्जिस्टिंग ओक्लूजल स्कीम, मतलब प्री एग्जिस्टिंग एमआईपी, क्योंकि अभी हम इंटरफेरेंसेस इन एमआईपी बात कर रहे हैं. तो जो हमारा एमआईपी पे ओक्लूजन था पेशेंट का जब हमारे पास फर्स्ट टाइम आया था, उसी को हमें कॉपी करना है. तो हर समय प्री ऑपरेटिव आप ओक्लूजन चेक करोगे पेशेंट का, सो दैट यू कैन डुप्लीकेट इट. अगर आपको लग रहा है आपने पहले चेक करा और बाद में आप भूल रहे हो इमेज, जस्ट क्लिक अ फोटो. और व्हाट इज बेस्ट, एक वाइट पेपर लो और टक 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 करके 3 जगह वाइट कराओ उसको, और वो मार्क्स आ जाएंगे दांतों के कस्प से या फिर फोसा पे, एंड यू क्लिक द फोटो ऑफ दिस, and then when you will be rechecking the occlusal marks, it should be very similar. इससे easy तरीका नहीं हो सकता guys. Will this clinically help you all now onwards? Hello again, sleeping mode on. आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे को Yes, sir. Yes, sir. yes, चलो ग्रेट. तो हमें ये समझ आ गया. तो हमको ये समझ आ गया कि जब भी हम कोई भी रिस्टोरेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, वी हैव टू मैच पेशेंट्स प्री एग्जिस्टिंग ओक्लूजल स्कीम. हाँ, वो बात अलग है कि उसकी प्री एग्जिस्टिंग ओक्लूजल स्कीम किसी वजह से खराब हो गई हो, जैसे उसने पहले कहीं ट्रीटमेंट कराया हो, वो बात अलग है. उसको भी कैसे ट्रीट करेंगे, आई विल टेल यू. वी आर कंसिडरिंग द पेशेंट केम टू आवर क्लिनिक फर्स्ट टाइम एंड वी वांट the ideal God given occlusal scheme has to be maintained. That's it. Consequences. अब हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, हम हाइड्रोजेनिकली, दैट इज वी आर गिविंग डिफ्लेक्टिव कॉन्टैक्ट्स. अब हमें हिट एंड स्लाइड समझ आ गया, तो डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स भी समझ आ गया. तो बेसिकली हो गया क्या कि अगर हमने करेक्ट नहीं करा, तो जैसे ही वो बाइट करेगा, जैसे ही मैंडिबल वाले दांत उसके
अपोजिंग टूथ से बाइट करेंगे तो देयर विल बी अ डिफ्लेक्टिव कॉन्टैक्ट. ठीक है, डिफ्लेक्टिव कॉन्टैक्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया कैसा होता है. एक कॉन्टैक्ट जो मैक्सिमम इंटरकस्पेशन में नहीं है, बेसिकली दिस इज अ डिफ्लेक्टिव कॉन्टैक्ट. उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अब हम पढ़ते हैं. अब हमने दांत पे तो देख लिया, आवर जॉ विल ट्राई टू अडैप्ट टू कम इन मैक्सिमम इंटरकस्पेशन, क्योंकि वो हमारा जॉ बना ही इस चीज के लिए. मगर जैसे हमने अब जाना कि हमारा टीथ, पेरिडोन्शिया मसल्स और टीएमजे इंटरकनेक्टेड है, दैट इज अ स्टोमैटोग्नेथिक सिस्टम इज इंटरकनेक्टेड. तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मसल्स, व्हाट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ मसल्स, मसल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वील सी नाउ. गाइस 1.5 मिनट में बंद हो रहा है, रिमेंबर व्हाट आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एक नॉर्मल मसल फंक्शन. नॉर्मल मसल फंक्शन का मतलब एक कोऑर्डिनेटेड मसल फंक्शन. अब इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं जो रेड वाली मसल्स है ना, देयर आर द एलिवेटर मसल्स, मतलब जो मैंडिबल को एलिवेट करती है. जब हम दांत क्लेंच करते हैं तो हमारा मैंडिबल एलिवेट होता है, तो ये वाली मसल्स एक्टिव हो जाती है. दैट इज देयर इज अ सम एक्टिविटी, दे कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, now just see the plus sign. Okay, this is the plus sign, plus sign, plus sign, and only one muscle is in a relaxed position. ठीक है, see inferior lateral, जो हमारी lateral pterygoid है उसका एक superior head होता है जो disc से attach होता है, that has a soft tissue attachment, और जो inferior lateral pterygoid होता है it has a bony attachment. तो जो superior lateral pterygoid है वो हमारी elevator है, और जो inferior lateral pterygoid है, I am telling the details of the muscle, वो हमारी anti gravity muscle है, that is helps in opening our mouth. ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि अच्छा, तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है. उसमें ये हो रहा है कि पेशेंट चू करने जा रहा है, यू कैन सी अ ग्रीन बोलस ऑफ फूड. ठीक है, और जब वो चू कर रहा है और सब कुछ नॉर्मल है तो ऐसे है मसल्स ऐसे फंक्शन कर रही है. एक नॉर्मल मसल का फंक्शन मैंने दिखाया है चू करते हुए. ठीक है, दैट इज MIP पे जाते हुए, दैट इज मैक्सिमम इंटरकस्पेशन में. मगर जैसे ही we are about to end the session in a minute, जैसे ही वो फॉर एग्जाम्पल अब हमने क्या हुआ, एक क्राउन दिया पेशेंट को, यू कैन सी अ क्राउन. ठीक है, विच इज ओनली कॉन्टैक्टिंग, अदर टीथ्स आर नॉट कॉन्टैक्टिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्ट.